कैपेसिटी सर, जो कंटेनर हम बात कर रहे हैं उसका 4,000 5,000 4,000 5,000 TEUs containers that can be taken in each ship. That is the size of these ships that we are talking about. They're not small ones, they're really, really massive ones. But then the big ones, the really big ones, okay, carry 18,000 to 20,000 TEUs. मतलब 20,000 containers, 20,000 containers एक ship में चला जाता है. The latest one, which is the biggest that's been made, carries around 25,000 containers. One ship carries around 25,000 containers. So, but that is the size of the trade. Today's situation is that today containers are not available. Containers, there's so much shipment that is crossing the oceans, and there is a huge shortage of containers. After this COVID, things have eased out, and अभी थोड़ा normal situation आ रहा है. तो उस situation में the number of containers availability is becoming so low. कंटेनर मिल नहीं रहा है, शिप नहीं मिल रहा है. अगर एक शिप में 25,000 कंटेनर भी जा रहा है, शिप भी नहीं मिल रहा है उसको. तो वो पुराने शिप जिसको रिटायर कर रखे थे उसको भी उठा के अभी काम पे चालू कर दिए वापस. So that is the kind of situation that's been happening across the world today, and shipping companies और कंटेनर वाले तो इतना पैसे बना रहे हैं, मतलब जितना नॉर्मली बनाते थे उसमें 2 गुना पैसा बना रहे हैं मिनिमम. ऐसे चल रहा है मार्केट. So it's in a very, very interesting situation right now. So you have ships which are carrying small, and there are very small ones which are carrying some 200, 300 containers also, जो ships इसमें river में जाते हैं या internal में होता है, local में होता है. And there are these massive ships which are carrying 20, 25,000, 15,000 kind of containers, which are going from these large oceans, like China to the US, China to here, etc., etc. बहुत कुछ होता है. Yeah, Ayush. Sir, how to apply for it? Sorry? Like I'm asking how to apply for this job, these type of jobs. Like what qualifications are required and what we have to do. किस job? Yes, sir. For shipping logistics. देखो, see, you basically अभी जो आप कोर्स कर रहे हो, you start looking for freight forwarding companies. See, it is a question that what I'm trying to understand is, आप शिप में जाना चाहते हो या शिपिंग में काम करना चाहते हो? सर शिपिंग में काम करना चाहता हूँ. मतलब you want to be on the land. यहाँ रहेंगे, ये सब ऑर्गेनाइज करेंगे ना. Yes, sir. Yes. So the best thing to do for you is to look mainly for freight forwarding companies. Okay, there are very large freight forwarding companies that are available in the world. Okay, so and also work on with companies like the large shipping lines that are there. Maersk is there, Panalpina is there. You have Kuehne+Nagel. All of these guys are big. You see OCL is there. I mean, and many other companies that are there, which are big shipping lines also, which are in this business. And freight forwarders, they do freight forwarding as well as shipping. Some of them, there are big freight forwarders. You go to a company like Expeditors, they work with every single freight forwarding company, must themselves do freight forwarding. So you can look for all these large freight forwarders and those guys. That is where what happens is the richness of the experience is पूरा end to end आप देखे हुए. जैसे मैं पहले से बता रहा हूँ, in this business, freight forwarder is the one who is picking the material from the seller and is taking it all the way to the buyer. Okay, across continents, across countries. Okay, वो रेल भी देखेगा, रोड भी देखेगा, फिर सी भी देखेगा, और अंत में वहां पर डिलीवरी करना है, कस्टम्स का क्लियरेंस करना है, जो कुछ भी है. चलो, from day one you will not end up to do everything. You have the opportunity to go from one to the other and so आप जब जॉब अप्लाई करोगे, these things, these fundamental concepts that we are talking about now, please understand these fundamental concepts. हमारा the entire course, the way we have structured it, it is more कि आप basic concepts समझ लो, basic questions. See, when if I come to an interview, college for an interview, I will not expect you to have 10 years of experience. I will not expect you to know everything under the sun. तो basics आपको अगर पता है, फिर तो आगे जो जॉब स्पेसिफिक होगा वो ट्रेनिंग तो काम पे हो जाएगा या वहां पर ट्रेनिंग दे देंगे. The fact is, fundamentals आपको जानना चाहिए.
That is what is this whole thing designed about. Now, if I come and ask you, अच्छा यार, TEU मतलब क्या है? You have to understand the fundamentals of what a TEU is. TEU is a 20 feet equivalent unit. Any container capacity, whether it is a storage in a location or in a ship or in a loading capability, whatever it is referred to as TEU. कितने TEU का load? Okay, 20 feet equality. These kind of questions are the ones that you need to work for. But look for freight forwarding companies. If you go to a company which is into, say, for example, if you had come and joined my team in Nokia, okay, possibly you would have been in road transport, possibly you would have taken care of my warehousing, possibly you would have taken care of my sea freight. I don't know. Depends on, at that point in time, what role I was hiring for. But if you go to a freight forwarding company, तो ये सब आ जाते हैं पूरा. I'm not sure. Oh, does it answer your question? वो छुपी हो गया वो पूरा. Sorry, who asked the question? I am forgetting the name. Hello. I think sir, he is gone. Hello, sir. No, sir. I'm here. Does my answer, is it okay? Or you expected something else? No, sir. I got it. You got it. Okay. Thank you, at least, for giving me that response. सर वो शिप का नाम है या फिर कंटेनर का नाम था? फीडर कौन सा? मैक्स. ये OOCL हांगकांग? नहीं, ये फीडर मैक्स नेटवर्क चला गया था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा. तो ये जो है, ये these are the type of ships. Panamax, Suezmax वगैरह. These are all type of ships. So depend, there are various reasons for why each of this. For example, आपका Suez Canal तो याद होगा अभी. Suez Canal, हाँ. तो Suez Canal के अंदर जो शिप जा सकता है, जो मैक्सिमम लेके जा सकता है, उसको Suezmax बोलते हैं. Okay, that is a type of ship. So similarly, there is another canal called Panama Canal. उसके अंदर Panamax, post Suezmax वगैरह. Then Suezmax को बढ़ा के उन्होंने post Suezmax एक बनाए थे. There is a Malacca Strait. So it's only kind of telling you the model, ship की model क्या है, वो कितना बड़ा हो सकता है वगैरह, limit क्या हो सकता है. I think we have spoken this, but some of them we have not spoken. So LCL is, we have said, a container अगर होता है, you see containers now, okay. इस container, if you are filling the container and sending it out, अगर कोई माल भेज रहे हो और you are filling it, आपका पूरा इतना container भर जाता है, तो आप full container को rent कर लोगे, जैसे full truckload FTL full था. So now this is FCL, full container load. अगर आपके माल जो है, आप बस फर्नीचर बनाते हैं और आप एक सोफा सेट भेजना चाहते हैं, कोई आपके सोफा सेट को आप मांगता है यूएस में, तो उसको पैक कर दिया, तो वो पूरा कंटेनर तो नहीं भर सकता है. सो देन यू विल बी गिविंग इट टू अ फ्रेट फॉरवर्डर जो कंसोलिडेट करता है. जैसे आपके सोफा सेट है, बाकी किसी और का कुछ और होगा, तो ही विल बी मिक्सिंग द लोड एंड पुटिंग इट इनटू अ कंटेनर. तो आपका LCL बोलते हैं, लेस देन कंटेनर लोड. ओके. So there is the way to stop this. LCL is less than container load, FCL is full container load. So all these loose items, if you notice, अभी जब तक हम all the ships that we have talked about, या तो it is carrying coal, oil, वैसे कुछ चीजें ले जाते हैं, या तो it is taking containers. कोई ऐसे नहीं होता है कि अपने घर का सामान अलग अलग लेके जा रहा है. There is no ship. पुराने जमाने में होता था, but अभी के जमाने में क्या है कि the last so many years now, ये जब से ये कंटेनर हो गया है, everything goes into a container, the container goes onto the ship. तो शिप का जो रुकने वाला टाइम नहीं, तो अगर सोचो कि अगर 20,000 कंटेनर्स का लोड है और उस सामान को अलग अलग करके शिप में लोड करनी है और वहां पर अनलोड करनी है, imagine the amount of time it will take. So the containers are packed somewhere
and all the small items are put into the container. अगर TV set हो, so somebody is exporting TVs, they put all the TVs into the container in their factory. Container आता है, उसको तो फटाफट ship में load कर देते हैं. So you have less than container load, you have full container load, FCL, LCL. So in an interview again, Ayush and others, where into what is it? Do you understand the concept of an FCL? Do you understand the concept of an LCL? So the question that I will ask you is that, अच्छा, हाँ, अगर आपका एक सोफा सेट भेजना है या अगर आपके पास 10 टीवियां हैं आपको एक्सपोर्ट करनी है, वो FCL होता है या LCL होता है? That is the kind of question. So you will have to know. LCL. हाँ जी. So it will depend on the capacity of the container. हाँ, देखो कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर तो आपको पता है. इन स्मॉलेस्ट कंटेनर इज 20 फीट लॉन्ग, 8 फीट हाई, 8 फीट वाइड. ओके, तो आपके पास 10 टीवी सेट है. 10 टीवी सेट क्या है, इतने विल इट फिल दिस डब्बा? ये जो येलो वाली डब्बा है ना, No, sir. तो वो LCL होगा. तो when इंटरव्यू में when the person is asking you if you have to send 10 TVs and if the 10 TVs will you send it by FCL or LCL? इसका मतलब है, the question is, the guy is asking you, when he's asking the question, he's trying to find out whether you understand what an LCL is, what an FCL is. So मतलब आपको वो जानकारी होना चाहिए, otherwise you can't answer the question. Secondly, you need to know 10 TVs कितना जगह लेगा, वो FCL ले सकता है कि क्या LCL में जाएगा. तो there are multiple things that are built into that same question. तो आप अगर LCL होगा, वो बोलेंगे हाँ सर वो तो 10 TVs ही है, तो छोटा सा जगह लेगा, तो हमें LCL ही भेजना पड़ेगा, सारा अच्छा पैकिंग करके सारे डॉक्यूमेंटेशन सही देके. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट दोगे? सो दैट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट बनना पड़ेगा? तो यू हैव टू गो बैक एंड से लाइक मेरा डॉक्यूमेंट ये बनना पड़ेगा, क्या BL होगा, उसका इनवॉइस होगा मेरा, उसके साथ में बिल ऑफ एंट्री बनाना पड़ेगा, पैकिंग लिस्ट बनाना पड़ेगा. तो ऐसे सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो सब. तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो देन द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड, अच्छा यार ये तो थोड़ा बहुत इस मामले के बारे में समझता है, राइट? So that is where the difference comes. So that is why I am trying to keep it in that direction. तो हम पोर्ट करके बात कर रखे हैं अभी तक, राइट? Tell me the name of one of the ports that you know. अभी तक तो काफी पोर्ट के बारे में बात कर चुके हैं. कोई पोर्ट का नाम बता दो आप. कोई भी. कांडला पोर्ट सर. कांडला पोर्ट है, ठीक है. आप कहाँ से हो भाई? मैं बिहार से हूँ सर. बिहार से हो, कंडला पोर्ट याद है आपको? इंटरेस्टिंग है. कहाँ कंडला पोर्ट पता है? ये गुजरात में है सर. गुजरात में है. वेरी गुड, गुड. एनीबॉडी एल्स? वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स इन द कंट्री कौन सा है? बिगेस्ट पोर्ट इन द कंट्री कौन सा है अपना? कोच्चि सर. कोच्चि कहाँ सर? नो सर, वो आई थिंक महाराष्ट्र में है, मींस मुंबई साइड है सर, वो नाम याद नहीं है. सर केरल में कोच्चि बोले थे आप सर. हाँ जी, केरल में आप कोच्चि पोर्ट बोले थे. केरल में तो है, कोच्चि पोर्ट है केरल में, नो डाउट. बट द लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री टुडे इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट पोर्ट कैसे बोला जाता है? इट्स मोर इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम्स ट्रांसैक्टेड, नंबर ऑफ शिप्स दैट कम देयर, ब्ला ब्ला. तो वो सब देखा तो वो JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है. दिस इज इन मुंबई. तो मुंबई पोर्ट इज द बिगेस्ट पोर्ट. ओके, तो हमारे यहाँ पर तो बिगेस्ट पोर्ट्स कौन से हैं? JNPT होता है एक, चेन्नई दूसरा है. दीज आर द 2 मेजर पोर्ट्स दैट वी हैव. ओके, इन दोनों के छोड़ के तेरा मल्टीपल पोर्ट, पारदीप वगैरह है, बट देन पारदीप का क्या है कि मोस्टली क्या होता है, उसको बल्क कार्गो हो जाता है. ओके, बट द की मेजर पोर्ट्स आर JNPT एंड चेन्नई. मुंद्रा इज ऑल्सो अनदर वेरी बिग पोर्ट एंड वेरी केपेबल पोर्ट. ठीक है, तो ये पोर्ट एक चीज हो गया. तो जब हम पोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि हमने क्या बोला, ये कंटेनर वगैरह, मोस्टली इन द कंटेनर सिचुएशन इज दिस हैपेंस. कंटेनर वगैरह क्या होता है कि वहां से उतार के सीधा ट्रेन में बिठा देते हैं. ट्रेन में कंटेनर का तस्वीर देखे थे ना आप, इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट. तो कंटेनर को, ट्रेन को, वो ओपन वैगन जो होता है ट्रेन का, ओके, खुले वैगन जो फ्लैट वैगन होते हैं, उसके ऊपर बिठा देते हैं कंटेनर. और वहां से वो कंटेनर वाला ट्रेन JNPT से सीधा निकल के
it comes to, there are different places, क्योंकि JNPT खाली एक लोकेशन में सारे काम नहीं हो सकता है, तो इतने सारे मटेरियल उसके थ्रू पास होती है, तो दे ब्रिंग द ट्रेन डायरेक्ट टू, से फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक लोकेशन है तुगलकाबाद, okay? तो वहां जाके दे bring the train there and unload the containers from the train. The beauty of the thing is that the तुगलकाबाद facility जहाँ पर ये कंटेनर अनलोड करते हैं, वो तो it is like a port terminal, okay? It is like a container terminal in a port. कस्टम्स यहाँ बैठे हैं, तो वहां पर मुंबई में या JNPT में वो कस्टम्स क्लियरेंस नहीं करते। भाई जो भी माइक ऑन कर रखे है उसको थोड़ा म्यूट कर ले प्लीज। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बताओ, नहीं तो म्यूट कर देना प्लीज। ओके, थैंक यू। तो दे ब्रिंग इट डाउन, सॉरी मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। कल शाम से कुछ सक करता तो आई डिडंट करेक्ट इट, माय मिस्टेक। So it comes to the ICD, it comes to the तुगलकाबाद फैसिलिटी, वो टर्मिनल जैसे ही काम करता है। यहाँ पर भी, वहां पर JNPT में कस्टम्स क्लियरेंस नहीं होता है, सीधा माल वो कंटेनर ट्रेन इधर आ जाता है, यहाँ उसको उतारते हैं ट्रेन से, और यहाँ पर इन दिल्ली उसको कस्टम्स क्लियरेंस करके माल उठा के ले जाते हैं। तो जैसे दिल्ली में है, दिल्ली तुगलकाबाद में है, दिल्ली में आसपास ही नोएडा के आसपास एक कुछ है, there is one ICD in Chennai also, somewhere in Coimbatore also। वैसे आपके ICDs होते हैं बहुत, ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे जगह पे ICDs होते हैं। ICD क्या होता है? इनलैंड कंटेनर डिपो। तो ये क्या है कि पोर्ट जो है वो इट इज नियर द सी, तो पोर्ट इज ऑन द सी, बट ये इनलैंड कंटेनर डिपो क्या है कि जैसे मैं दिल्ली के मिडल ऑफ द कंट्री, कोई ये नहीं है, मतलब उसके आसपास कोई ओशन नहीं है, सी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कंटेनर को ट्रेन में लाके यहाँ उतार के यहाँ पर उसका कस्टम्स क्लियरेंस को भी करना है करके, वहां से कस्टमर उसको अपने यहाँ पर ले जाते हैं। सिमिलरली कोई भी एक्सपोर्ट का चीज होता है, मटेरियल को कंटेनर में लोड करके कस्टमर क्या करता है, उसको दिल्ली ICD के अंदर, मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूँ, जहां भी ICD हो, ओके, ICD पे ले जाते हैं, ICD पे कस्टम्स क्लियरेंस करके एक्सपोर्ट के लिए उसको दे देते हैं, फिर उसको कंटेनर चढ़ जाता है ट्रेन के ऊपर वहां पर ICD में, और जो भी पोर्ट चलना है तो वहां पर, यहाँ से चेन्नई जाना है चेन्नई चला जाता है, या मुंबई चला जाता है, मुंद्रा चला जाता है, जहां भी चल रहा है चल जाता है, और वहां पर उसको शिप में डाला जाता है। वहां पर कोई काम नहीं, बस वहां जाती है और उसको दे पुट इट ऑन टू द शिप इन द पोर्ट। वहां पर कोई कस्टमर का काम नहीं है, पूरा CHA का एक्टिविटी, बिल ऑफ एंट्री, जो कुछ भी फाइल करनी है, सारे सब कुछ यहाँ पर दिल्ली कोई भी ICD में हो जाता है। ओके, जस्ट समझ गए कि इनलैंड ICD क्या होता है, इनलैंड कंटेनर डिपो। पोर्ट is where the ship will come, inland and container depot is where the containers will be brought by train, most likely by train, and there it will be customs cleared. समझ आए? मेरा, I am just taking Naveen's name, Naveen or Naveen Jaise, all those guys like Naveen who are in the south, are they following it? Because I'm saying so many things in Hindi. Are you following it, guys? Naveen and others? Okay, very good. Sir, it means, sir, ICD is a combination of other than inland or inland, both. Other than inland and inland both. मतलब क्या है? Means inland means it is a kind of road. हाँ, करेक्ट। सो ICD एक वो क्वेश्चन 1 मिनट होल्ड कर लो। कौन बोल रहा है अभी? आई कांट सी, सॉरी। विशाल, just hold your question. I'll just come to the ICD a little more in the next slide, okay? Just hold your question, but make sure you ask me the question if I don't explain it. Now there is one more animal called a CFS. ये CFS क्या होता है? ये कंटेनर फ्रेट स्टेशन बोलते हैं इसमें। कंटेनर फ्रेट स्टेशन में it is a facility operated by your freight forwarders most likely. Okay? यहाँ पर
वेरी फ्यू कंटेनर फ्राइट स्टेशन में टिपिकली कस्टम्स नहीं होते। ओके, तो जैसे हमने ये वो सोफा के बारे में बात किए थे और वी टॉक्ड अबाउट 10 टीवीज दैट हैव टू बी सेंट, तो आपके एक 10 टीवी ले जाने के लिए कोई कंटेनर आपके यहाँ पर नहीं आएगी, वो कोई अपना गाड़ी लेके आएगा, जो छोटा हाथी whatever little truck they will bring, they will take those things and they will give you an LR and all those things and they will take it from there. वो खाली बेसिक रोड ट्रांसपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, आपका इनवॉइस तो लगेगा बट दे विल टेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ रोड ट्रांसपोर्ट। बट वहां से दे विल टेक इट टू अ CFS। फ्रेट फॉरवर्डर क्या करते हैं, आपके यहाँ पर ही विल ब्रिंग ऑन स्मॉल टेम्पो, टेक द 10 TVs, डू द नॉर्मल पेपर वर्क एंड टेक इट टू हिज CFS। CFS में देन वहां पर दे हैव अ वेयरहाउस जहां पर दे इकट्ठा करेंगे। आपका 10 टीवी है, मेरा 10, एक सोफा है, किसी और का कुछ और सामान है, राइट, उसको इकट्ठा करेंगे और वहां पर कंटेनर लाके, अगर हम वी वांट टू सेंड दैट ऑल दैट मटेरियल टू से हमारे यहाँ से वी वांट टू सेंड इट टू से समवेयर इन अफ्रीका, ओके, दुबई भेजना चाहते हैं, चलो दुबई भेजने के लिए क्या करेंगे, वहां दुबई के लिए एक कंटेनर लाएंगे, वो सोफा, मेरा सोफा, आपका टीवी और किसी और का, विशाल का कुछ क्या होता है, हो सकता है, क्या करें विशाल, आप क्या भेजना चाहेंगे? सर मेरा साइकिल भेज दीजिए। चलो साइकिल ले लेंगे। किसी और का कुछ और होगा, मोटरसाइकिल होगा, ओके, जो भी है, ऐसे अलग अलग चीजें हो जाते हैं जो वो वेयरहाउस में जाके लाके इकट्ठा कर देते हैं और उसको कंटेनर में डाल देते हैं। ठीक है, वो कंटेनर लाएंगे वहां पर और कंटेनर में सारी चीजें लोड करेंगे। उस कंटेनर का एक पूरा अलग, आपका अलग से BL मिलेगा, उसका अलग से एक टोटल कंसोलिडेटेड BL उस कंटेनर का लगेगा। तो उस कंटेनर फिर वहां से उठ के ICD में जाएगा या पोर्ट अगर पास है तो सीधा पोर्ट पे जाएगा। तो ये CFS जो होता है कंटेनर फ्रेट, वहां जाके ICD में या पोर्ट में जाके उसका कस्टम क्लियरेंस होगा, राइट। नाउ CFS इज ओनली द कंसोलिडेशन। सर, हाँ जी बोलो। सर जो कस्टम ड्यूटी होता है, हाँ जी सर कस्टम ड्यूटी बेसिकली मैंने एक फिल्म देखी थी, बदमाश कंपनी बोल के, तो वहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी, वहाँ पे नीलामी हो रहा था, सामान सीप से जब आ रहा था बाहर से, तो वहाँ पे नीलामी हो रहा था कस्टम ड्यूटी के। वो कस्टम ड्यूटी सर क्या होता है? चलो, तो आप अभी जब कोई रेस्टोरेंट में खाते हो, ठीक है, वो बिल देता है। बिल में आपका जो खाते हो पराठा खाए तो पराठा का तभी 50 रुपए का जो रेट हो गया, उसके ऊपर से कुछ लगता है? हमें पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ यार, हमने तो पराठा ऑर्डर किए, पूरी कहाँ से आ गया? कोई भी दूसरे पीछे से पूरी के बारे में बात कर रहा है, पूरी पेमेंट वगैरह। उसको जरा म्यूट कर देना मेरे भाई। किसका है? आपका ही है क्या? चलो, सर पराठा के बिल आ गया 50 रुपये। उसके बिल पे पराठा का 50 रुपए के ऊपर कुछ और लगता है? कुछ और लगता है? चटनी सर। हाँ जी सर, उसके साथ चटनी मिलता है ना। बिल पे क्या मिलता है मेरे भाई? टैक्स सर, टॉकिंग अबाउट टैक्स टैक्स लगता है यार पराठे के क्या चटनी कहाँ मिलता है? डोसा थोड़ी ऑर्डर किया तुमने। उसके साथ अचार मिलेगा भाई, दही मिलेगा शायद। चलो, उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये ड्यूटी क्या है? GST। हाँ, GST लगता है। आज के जमाने में GST लगता है, वो भी टैक्स है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो वो लगता है। तो जब इंपोर्ट करते हो कोई भी सामान, गवर्नमेंट क्या बोलता है, इंपोर्ट जब करते हो, मुझे कोई टैक्स, आपको जब इंपोर्ट करने के लिए परमिशन मैं दे रहा हूँ आपको, उसके लिए आपको एक टैक्स भरनी है। इस टैक्स को ड्यूटी बोला जाता है, कस्टम्स ड्यूटी। कोई भी सामान अगर इंपोर्ट करते हो, मतलब देश के बाहर से, विदेश से जब अंदर लाते हो, उसका कस्टम्स ड्यूटी भरना पड़ता है। ओके, वो कितने रुपए का, मतलब 50,000 रुपए के तक कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं है, इसका नहीं है, उसका नहीं है, इसका है, उसका है, वो सब कस्टम्स ड्यूटी का
मतलब बहुत बड़ा आइटम है वो अलग चीज है वो, बट देन वो वापस उसी पे चला जाता है। आप पहले आपको याद होगा वी टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज HSN, हार्मोनाइज्ड नंबर्स, हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड नंबर्स बोल लेते हैं उसको। वी इट इज अ 6 डिजिट CHA नंबर। सर। CHA अलग है भाई, CHA इज कस्टम्स हाउस एजेंट, जो आपको करता है वो आपको ये क्या कस्टम्स वगैरह क्लियरेंस एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए उस पर काम करता है। HSN नंबर करके एक चीज है, आई गो बैक टू दैट स्लाइड। HSN नंबर करके एक चीज है, दो जिस पे क्या है कि HSN नंबर, एवरी आइटम इज क्लासिफाइड अंडर अ सर्टेन HSN कोड। इट इज अगेन इट इज अ कोड which is common, Yes which is sir. standard Yes sir. 6 across the digit. world। 6 डिजिट नंबर है अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इज कॉमन। मतलब आप तेल ला रहे हो, मतलब सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते हो, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हो, ऑल ऑफ दैट कम अंडर अ सर्टेन HSN कोड। ओके, सो बट वो उसका कोई HSN कोड होगा। जैसे आप वापस टीवी के बारे में बात करें, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वैसे उसका एक HSN कोड होगा। मोबाइल फोन का दूसरा HSN कोड होता है। ओके, कार का एक HSN कोड है, जनरेटर का एक HSN कोड है। ऐसे मतलब अलग एवरी प्रोडक्ट का नहीं होता है, एवरी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स का HSN कोड अलग अलग होते हैं। और कौन सी प्रोडक्ट का कौन सी HSN के अंडर क्लासिफाई करना है, ये सब वो अपना CHA वगैरह लोग अच्छे जानते हैं और कस्टम्स लोग उसको सही करते हैं। क्या तो आप जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो उस पे आप अपने जो मटेरियल है उसका HSN कोड का हमेशा दिखाएंगे कि ये कौन सी HSN के अंदर आता है। वो इट इज यूज्ड इंटरनली आल्सो, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक, क्योंकि GST के भी रेफरेंस कहाँ से होता है, ये HSN कोड का ये GST है, ऐसे होता है। ठीक है, तो HSN कोड इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई। ओके, वी टॉक्ड अबाउट इट। पहले हम जब CHA के बारे में इसके बारे में बात कर रहे थे तब HSN के बारे में भी बात किए थे, शायद आप ही भूल गए। गो बैक टू दोस लेसन्स, आप स्लाइड दिखेगा उस पे। ओके, Yes तो sir. तो ड्यूटी ये है कि आप जब इंपोर्ट करते हो, गवर्नमेंट क्या चाहता है, गवर्नमेंट ये चाहता है कि आप बाहर से इंपोर्ट ना करें, कोई भी चीज है उसको ना करें। जैसे कार के एग्जांपल ले लेते हैं, आसानियत है। चलो मोटरसाइकिल, आपकी उम्र के लिए वो मोटरसाइकिल बेटर है। हाँ, आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो, मोटरसाइकिल आपको एक बजाज पल्सर खरीद सकते हो, लेकिन दिल करता है कि ये खरीदने को। हाँ, ऐसे मेरे आपकी उम्र में मेरा भी अभी भी क्या होगा, वो आपकी उम्र तो क्या, अभी भी मुझे लगता है कि यार एनफील्ड नहीं खरीदूंगा, हार्ली डेविडसन खरीद लूंगा। ठीक है, बट एनफील्ड क्या है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, हार्ली डेविडसन कहीं बाहर से बनी हुई है। तो ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयमेंट होता है लोगों का, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट होता है, यहाँ से खर्चा होता है, यहाँ पर आपका टैक्स वगैरह भरते हैं वगैरह, इतना बहुत कुछ होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, सब कुछ है। अगर बाहर का गाड़ी आप खरीद लिया तो क्या होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं होता है, और उसके ऊपर से जितना भी एम्प्लॉयमेंट है वगैरह लोकली वो सब नहीं होता है। ठीक है, बहुत डिसएडवांटेजेस है। तो गवर्नमेंट क्या चाहता है कि आप बाहर से कुछ खरीदो नहीं, ओके, मत खरीदो। इसीलिए तो वो ड्यूटी लगवा देते हैं। कभी कभी वो हार्ली डेविडसन का ड्यूटी क्या होता है कि गाड़ी का अगर 1 लाख का भाव है तो उसके ऊपर से वो 150%, 150% की उसके ऊपर ड्यूटी लगता है। मतलब ड्यूटी उसके ऊपर 2.5 लाख का होता है। मतलब कुल मिला के गाड़ी का भाव कितना बन जाता है, सॉरी 1.5 लाख का ड्यूटी बन जाता है, कुल मिला के गाड़ी का भाव बन जाता है कि 2.5 लाख। ठीक है, whereas you get your Enfield at 1,50,000. So it is sometimes it is like that. Sometimes थोड़ा बहुत ड्यूटी लगता है, 10%, 20%, 15%, जो अपना GST के हिसाब है उस हिसाब से लगता है। तो ड्यूटी इज अ टैक्स दैट यू पे व्हेन यू आर इंपोर्टिंग द मटेरियल, एंड समटाइम्स वेरी रेयरली एक्सपोर्ट पे नहीं लगता है, बट वेरी रेयरली एक्सपोर्ट पे भी लगता है। कुछ चीजें हम चाहते हैं कि बाहर से ना जाए, नहीं जाए, we want to keep it inside the country, okay, we don't want the people to export some material, तो उसके ऊपर ड्यूटी लगता है। अदरवाइज ज्यादा मोस्टली एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगता है, इम्पोर्ट पे लगता है। सॉरी, आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे थे, थोड़ा लंबा आंसर हो गया लगता है मुझे, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। आईसीडी जो है मतलब वो भी कस्टम्स क्लियरेंस वगैरह करता है, राइट? कौन सी? आईसीडी आईसीडी में आप कस्टम क्लियरेंस कर सकते हो, मतलब आप आईसीडी यूज कर रहे हो तो यहीं पर कस्टम क्लियरेंस होगा।
जहाँ आईसीडी है वहां पर ऐसे कस्टम क्लियरेंस होगा, पोर्ट पे नहीं होगा। पोर्ट पे वो वहां से थ्रू शिपिंग करके सीधा इधर आ जाएगा, आईसीडी पे आ जाएगा, या आप और आईसीडी पे आप कस्टम क्लियरेंस करेंगे। दैट इज द एडवांटेज। ओके, अगर आप दिल्ली पे आपका ऑफिस है और माल आपको दिल्ली पे चाहिए, ठीक है, उसको मुंबई में उतार के वहां पर कस्टम्स क्लियरेंस कर दिया, और वहां कस्टम्स क्लियरेंस करने के बाद में फिर उसको ट्रेन में नहीं डाल सकते, उसको एक ट्रक में डालना पड़ेगा, बड़ा सा ट्रक पे, और कंटेनर को वहां से खींच ला के यहाँ लाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि वो सीधा वो ट्रेन में बैठ जाएगा और सीधा आईसीडी में आ जाएगा। एंड यहाँ पर दिल्ली पे, यहाँ पर आप लोकली है तो इट इज इजी टू टेक केयर ऑफ इट। अगर इंस्पेक्शन कुछ करना चाहते, सी नॉट ऑल कंटेनर्स आर इंस्पेक्टेड बाय दी कस्टम्स, वो भी सारे कुछ नहीं कर सकते। उनका कहीं कहीं डाउट आ जाता है, फिर बोलता है कि खोल दो, दिखा दो, सब कुछ उतार दो, मुझे बताओ ये क्या है क्या है क्या है, पूरा इंस्पेक्शन में लग जाता है। ठीक है, फॉर ऑल दोज पर्पसेस इट इज इजियर इफ इट इज नियर योर लोकेशन, एंड दैट इज वन। सेकेंडली क्या है कि अगर नवशिवा जैसे पोर्ट लो, उस पे इतना कंजेशन है, इतना कंजेशन है, मतलब पूछो मत। इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट अ कंटेनर अनलोडेड इन नवशिवा टू टेक कस्टम्स क्लियर एंड टेक इट आउट ऑफ नवशिवा। करते हैं लोग, मतलब रोज का काम है, बट उसका वहां पर बहुत कंजेशन हो जाता है। तो भी से लेके जाए यार, ट्रेन में डाल दे, यहाँ आएगी, यहाँ पर मतलब वहां 5 दिन लगता है, यहाँ पर 2 दिन में हो जाएगा, तो टाइम बेनिफिट भी काफी है। ठीक है, अच्छा, सीएफएस के बारे में बात कर रहे थे। कंटेनर फ्रैट स्टेशन एक वो कंसोलिडेशन के लिए होता है। दूसरी ये होता है कि आपका कंटेनर भर गया, एफसीएल है, फुल कंटेनर लोड है, कंटेनर तो भर दिया आपने, लेकिन आपका शिप क्या है कि शिप ने अभी जिस शिप में वो चढ़ना है वो शिप आई नहीं है, मतलब वो लेट आ रही है, जो भी है। तो अगर आप पोर्ट के अंदर कंटेनर को लेके चले गए तो पोर्ट पे आपको फ्री टाइम मिलता है, 1 दिन, 2 दिन, ऐसे कुछ टाइम मिलता है। डिपेंड्स ऑन द पोर्ट, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, आपको टाइम मिलता है, फ्री टाइम। उससे ज्यादा अगर उसको वहां पर रखना है तो आपको उसके लिए डेमरेज चार्ज करेंगे, आपको वापस जाना पड़ेगा। डेमरेज क्या है, डिटेंशन क्या है, याद करने को। डेमरेज, आप उस एरिया को यूज करते हो, उस पोर्ट पे एक कंटेनर रखने का जगह यूज कर रहे हो, उसके लिए वो अपना चार्जेस लगवाएगा, पोर्ट वाला, पोर्ट अथॉरिटी। तो आप क्या चाहते हैं, आपके फ्लाइट फॉरवर्डर के साथ एक डील होगा कि कंटेनर अपने सीएफएस में लाके अपने सीएफएस में रख ले, और 2-4 दिन वहां रहेगा, और जब शिप आ जाता है तब उसको पोर्ट के ले जाओ। सीएफएस क्या होता है, सीएफएस नॉर्मली पोर्ट के आसपास रहता है, 50-60 किलोमीटर की दूरी पे, ऐसे दूरी पे रहता है। सो इट इज इजी दैट यू टेक द कंटेनर, कीप इट देयर। सिमिलरली जब कंटेनर आ गया है, आप कस्टम्स क्लियरेंस कर दिए, लेकिन आपके यहाँ पर कोई कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े मशीनरी लाते हैं कंटेनर पे, उसको मशीनरी को क्या करते हैं, दे मेक इट इनटू पार्ट्स, दे ब्रेक इट इनटू पार्ट्स एंड दे शिप इट इनसाइड अ कंटेनर। द कंटेनर हैज लैंडेड, इट इज गॉट कस्टम्स क्लियर्ड, बट यहाँ पर जो मशीनरी को इंस्टॉल करने का जो जगह है वो तैयार नहीं है, तो उसको लाके आप अनलोड नहीं कर सकते हो, कंटेनर को पोर्ट के अंदर नहीं रख सकते हो। तो यू टेक इट टू टेल दिस गाय सीएफएस को, चलो यार पोर्ट में मुझे 1000 रुपया देना पड़ता है, तुम सीएफएस में रख ले, मैं उसका पैसा थोड़ा 500 रुपया दे देता हूँ, खर्चा है, फिर भी पोर्ट पे रखने से ये फायदा है। सो अ कंटेनर फ्रेट स्टेशन इज ऑपरेटेड बाय द व्हाट डू वी कॉल द फ्रेट फॉरवर्डर मोस्टली, और an agency independent of the freight forwarder। फ्रेट फॉरवर्डर का उनके साथ में there is a contract or whatever connection है, जहां पर फ्रेट फॉरवर्डर अपना माल रख सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है, वहां पर कुछ अलग अलग कर सकता है। ओके, एलसीएल आ गया, वहां पर उसको उसको क्या बोलते हैं उसको, forgetting the word, डी स्टफ बोलते हैं। कंटेनर को स्टफ करते हैं, कंसोलिडेशन करते वक्त उसको स्टफ करते हैं। जो कंटेनर एलसीएल कंटेनर बाहर से आया, दुबई से एक एलसीएल कंटेनर आया, उसका तो भाग करना है ना, तो डी स्टफ करते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज के लिए ये सीएफएस काम आती है। एफटीजेड, ओके, इसको एफटीडब्ल्यूजेड भी बोलते हैं। एफटीजेड इज फ्री ट्रेड जोन। नाउ फ्री ट्रेड जोन इज वन मोर स्पेस जहां पर आप अगर कोई कंटेनर में कहीं लेट अस से आपको
वियतनाम से कोई मटेरियल आ रही है, आप यहाँ से कुछ मटेरियल कवर बनवा रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को एक साथ पैक करके आप अपने कस्टमर को भेजना है यूरोप में। चलो आप यहाँ एक फोन बना रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन बना रहे हैं, लेकिन चार्जर आपका कहाँ से आ रही है? वियतनाम से आ रही है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं कि चार्जर आती है तो उसको यू डोंट वांट टू उसके इंपोर्ट करो, उसको पूरा झंझट करो, कस्टम्स वगैरह क्लियर करो, ड्यूटी पे करो, और उसको फिर वहां से आप क्या करेंगे, एक फ्री ट्रेड जोन करके एक एरिया है जिसको एनक्लोज्ड स्पेस दे देते हैं, मतलब नियर द पोर्ट इट इज अ स्पेस व्हिच इज अ कस्टम स्पेस, वो उसको बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल टेरिटरी है। तो आप अपने फोन्स को खाली उसके अंदर ले जाते हैं, पैकिंग को अंदर ले जाते हैं, उसका जो भी कस्टम्स ड्यूटी जो करना है करके उसको अंदर ले जाते हैं, और वहां पर आप एक वेयर हाउस जैसे रखा हुआ है जहां पर वो चार्जर आता है, उसका आपको कस्टम्स क्लियरेंस कुछ नहीं करना है, बस शिप से आता है, वहां पर उसको उतार देते हो, उतार के आप एक पैकिंग के अंदर सारी चीजें इकट्ठा कर देते हो, पूरा फोन चार्जर के साथ में पैकिंग हो गया, फिर उसको एक साथ एक्सपोर्ट करते हो। तो ऐसे काफी कुछ हो जाता है फ्री ट्रेड जोन के अंदर, ठीक है? तो फ्री ट्रेड जोन का मतलब ये है कि वहां पर आपको कोई ड्यूटी नहीं भरना, या आप ऐसे भी हो सकता है कि मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल बताया, ऐसे भी हो सकता है कि आप दो तीन चीजें चाइना से, वियतनाम से, इधर से उधर से खरीद रहे हो, और आप यहाँ पर इंडिया में असेंबली कर रहे हो और उसको यूरोप में, यूएस में, अफ्रीका में कहीं भी बेच रहे हो, तो आपका फैक्ट्री वो फ्री ट्रेड जोन के अंदर रहेगा, ताकि वो चाइना से, वियतनाम से, जहाँ से भी मटेरियल आ रही है उसको आप इंपोर्ट करें, उसको कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर आप गए, आपके फैक्ट्री चल रहा है, वहां पर आपने असेंबली किए और वहां से कोई वापस कंटेनर में डाले, उसको बेच दिए, उसको वापस कोई कस्टम्स ड्यूटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि वो इंटरनेशनल टेरिटरी माना जाता है, वहां से बाहर से मटेरियल आई, यहाँ पर कुछ वैल्यू एडिशन हुई और यहाँ पर से दूसरे चीज बन के वो एक्सपोर्ट हो चुका है। सो दीज आर थिंग्स दैट हैपेंस इन अ फ्री ट्रेड जोन, ओके। और फ्री ट्रेड वेयर अगर उसके अंदर वेयरहाउसिंग भी है तो आप काफी कुछ मटेरियल लाके रख सकते हो वहां पर, ठीक है, और जब चाहिए आप कस्टम क्लियरेंस कर सकते हो। एडवांटेज है सर, ड्यूटी क्या है कि कभी बहुत हो जाता है, अगर 10% भी, अगर 20% की ड्यूटी है समझो, चलो हमने हार्ली डेविडसन का एग्जांपल बाहर बोले थे ना, हार्ली डेविडसन वाले अगर एक साथ उन्होंने 100 बाइक इंपोर्ट किए, 100 बाइक इंपोर्ट करे, मतलब हर बाइक के ऊपर 1.5 लाख की कस्टम्स ड्यूटी है, मतलब उनका क्या हो गया कि 100 बाइक के लिए कितना हो गया, 150 लाख, मतलब 1.5 करोड़ का कस्टम्स ड्यूटी भरना पड़ेगा, राइट? है कि नहीं? यस सर। तो वो क्या चाहता है, अगर हम 100 के बारे में बात कर रहे हैं, वो 1000 बाइक इंपोर्ट करता है, 1000 बाइक इंपोर्ट करता है, मतलब 15 करोड़ का रुपया उसको इन्वेस्ट करना, मतलब उसको ड्यूटी भरना पड़ता है। तो वो क्या चाहता है कि यार 15 करोड़ को मैं एक साथ में क्यों डाल के रखूं, मैं ये कैसे भी गाड़ी को कहीं वेयर हाउस में रखना है मुझे, वो फ्री ट्रेड जोन के अंदर एक वेयर हाउस लेके उसके अंदर गाड़ी 1000 गाड़ी लाके रख देता है, और जब चाहिए एक गाड़ी निकालता है, उस गाड़ी के लिए वो कस्टम ड्यूटी भरता है। तो क्या है कि उसका वो 15 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट, अगर 1000 गाड़ी एक साल के लिए रखता है तो 15 करोड़ का जो इंटरेस्ट वगैरह जो उसका कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, उसमें से सेविंग मिलता है। तो जब चाहिए माल, चाहिए जितना चाहिए उतना उठा के रहता है वो, एक एक बाइक करके, दो दो बाइक करके, जब चाहिए कोई ऑर्डर आ गया, कोई कस्टमर से ऑर्डर है, जब तब जाके वो 1000 से एक या दो या 10 या 20 या जितना भी चाहिए उतना उठाता है, उसके लिए कस्टम्स ड्यूटी भरता है, बस लेके चला जाता है। तो दैट इज व्हाई यूज अ फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन आल्सो, ठीक है? अंडरस्टैंड? सम ऑफ यू अंडरस्टैंड, सम ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड, ओके? यस सर। अंडरस्टूड। तो ये हैंडलिंग कैसे होता है, देखो, कंटेनर को उठा के रखने के लिए काफी देयर आर मेनी मेनी, मतलब जैसे हम फोर्कलिफ्ट ट्रक देखते हैं, ये पूरा कंटेनर जितना भी वेट है उसका, उसको उठा के रखने के लिए अपने अपने मशीन्स होते हैं, वो उठा के रख देता है। स्टैकर है, जैसे आप इधर देख रहे हो, ये तो स्टैकर हो गया आपका, राइट? इट इज
arranging it. Okay. These are all, if you look at these things here, these are all overhead cranes. वो मूव करता रहता है, उठा के ट्रक के ऊपर बिठा देता है, राइट? ये भी उसको उठा के ट्रक के ऊपर रखता है. तो डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेन का वैगन है, ये शायद वैगन पे रख रहा है या वैगन से उतार रहा है कान से, बट देन कुछ तो हो रहा है, राइट? तो ये सब हैंडलिंग. तो अभी ये जो है, दिस इज आईसीडी तुगलकाबाद. ये आईसीडी तुगलकाबाद क्या होता है? दिस इज द वन दैट इज इन दिल्ली, आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट? एंड यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ऑल दिस लिटिल थिंग्स जो दिख रहा है आपको, ये पूरा आपका कंटेनर्स है. अगर आप इधर देखें, ये दिस इज योर दिल्ली बॉम्बे दिल्ली चेन्नई वाली मेन रेलवे लाइन, राइट? तो आपको क्या है कि इधर से आपको एक साइडिंग मिल जाता है. रेलवेज में जब बात कर रहे थे हम, साइडिंग के बारे में बात कर रहे थे. तो यहाँ से ट्रेन आती है, ये तुगलकाबाद स्टेशन है, इधर रेलवे स्टेशन. यहाँ से आके वो कंटेनर लेके अंदर घुस जाता है इसके अंदर. कहीं आदमी कहाँ यार, उसका लाइन इधर का ही है उसकी लाइन, ठीक है? वो इधर अंदर चला जाता है और जो हैंडलिंग इक्विपमेंट आप देखें उसको यूज करके कंटेनर को अनलोड करके इधर कंटेनर्स को अरेंज कर देते हैं. ओके. और यहाँ पर उनका कस्टम्स का ऑफिसर्स वगैरह है, कस्टम्स क्लियरेंस करते हैं और गाड़ी में ट्रक में बिठा के कस्टम्स क्लियरेंस होने के बाद में ट्रक में बिठा के उसको बाहर ले जाते हैं. ठीक है. नाउ विशाल, आप क्वेश्चन क्या था उस टाइम पे? सर वो आईसीडी में तो मुझे ऐसा समझ में हाँ कि मिक्स्ड है कि पहले वो मतलब आएगी कहीं बाहर से, जैसे कि या तो सी से आएगी या एयर वेव से आएगी, और फिर उसके बाद हमारा लैंड का फिर यूज होगा. तो ये कॉम्बिनेशन है ना? तो ये कॉम्बिनेशन है. तो एयर आईसीडी टिपिकली इज नॉट एयर, ओके, इट इज ओनली फॉर सी. ओके. एयर का तो अपने एयरपोर्ट पे ही हो जाता है. ओके. यहाँ एंड कंटेनर्स डोंट, एयर वाले कंटेनर्स डोंट गो आउट ऑन टू द रोड्स. वो ट्रक में लोड होके चले जाते हैं, मतलब सामान जो है उसके अंदर दैट गोज इनटू द ट्रक. whereas कंटेनर, सी कंटेनर जो है वो उसमें वो कंटेनर्स गेट ऑन टू द ट्रक एंड द ट्रक गोज टू द रेस्टोरेंट. ठीक है. सो यहाँ पर आपको, दैट इज व्हाई आई शोड यू द पिक्चर, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू वेट. सो ये दिल्ली के आसपास कोई ओशन, राइट? सो इट हैज टू कम फ्रॉम बॉम्बे by train. That is why I am showing you the railway line. The railway is here, okay. And यहाँ पे आके उतर के ये इधर कस्टम्स क्लियरेंस का जो काम है, जो काम होने के बाद में these are all warehousing inside the ICD. ठीक है. warehousing है, कस्टम्स का ऑफिस इधर उधर है. मुझे इधर से ये पिक्चर में सही नहीं दिख रहा है, बट जान लो कि यहाँ पर वेयरहाउसेस है. वेयरहाउसेस किस लिए है? जब वो चाहता है कि कस्टम्स ऑफिसर चाहता है, कुछ डाउट आ जाता है बिल ऑफ एंट्री देख के, उनका इनवॉइस और या कोई डिटेल हम जो दिए वो सही नहीं, उनको बैठ नहीं रहा है, सो देन ही वांट्स टू डू योर इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन का भी बोलेगा कि अच्छा बस खोल के दिखाओ. तो यू ओपन द कंटेनर एंड यू सी द कंटेनर. वो बाहर से देखेगा, एक दो सैंपल देखेगा, छोड़ देगा. समटाइम्स दे डू पूरा माल उठाओ, 100% माल उठाओ. तो 100% माल तो रोड पे नहीं उतार सकते क्योंकि these are all open yards. जब वेयरहाउस के बारे में बात करेंगे आपको ये पता होगा, दिस विल बी ओपन यार्ड्स. सो क्या करेंगे, कंटेनर को वेयरहाउस के इधर वेयरहाउस में ले जाते हैं और उसके इनसाइड कवर्ड वेयरहाउस है, उसके इनसाइड उसको अनलोड करते हैं और वो पूरा इंस्पेक्ट करता है बंदा. इंस्पेक्ट करने के बाद में उसको उठा के और वापस कंटेनर में डाल देते हैं और उसको उठा के ट्रक में रख देते हैं, बिग ट्रक्स में, एंड इट गोस. सो it is an inter point where you have all the three modes, rail, so only the two modes, rail as well as the road, दोनों आ जाए. तो सर ये तो सी के पास होना चाहिए था ना सर, वहां से पहले क्लियरेंस होगी, कस्टम आएगी सामान, उसके बाद ना होगा सर? वेरी करेक्ट. सी में क्या है कि ये जो काम जो, एक मिनट आई विल जस्ट आंसर द क्वेश्चन. सी के पास जो है वो जो काम होता है वो कस्टम क्लियरेंस का काम जो है वो पोर्ट पे ही हो जाता है. पोर्ट पे ये सारे जो हम बात कर रहे हैं अभी, उसमें से शिप में से उतरी और
पोर्ट कंटेनर टर्मिनल के बात किए थे हम। कंटेनर टर्मिनल में माल उतरी और वहां से पूरा ये जो कस्टम्स क्लियरेंस वगैरह काम जो बात कर रहे हैं वो सब वहीं पर होके पोर्ट से निकल जाता है, वो एक तरीका है। बट ऐसे से जैसे जेएनपीटी का है वहां पर कंजेशन ज्यादा है और आपका लोकेशन इधर दिल्ली में हो या हैदराबाद में हो या कहीं पटना में हो, ओके, तो आप क्या चाहते हैं अपने यहाँ पर लाके उसको फटाफट क्लियरेंस करें। जैसे भी वो आपको माल उठा के वहां से यहाँ ले आना ही है ना, माल तो आपको पटना में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, कहीं भी चाहिए, तो आप ट्रेन में डाल के लेके आते हो, यहाँ पर कस्टम क्लियर जल्दी करवा लेते हो। या दूसरा कोई मोइनल? Yes, sir. Actually, I have an PPT session in future, so that's why I want to leave this class, sir. पीपीटी सेशन इन Yes, sir. FITG. FITG. Yes, sir. ठीक है, Hello. ओके, हाँ जी हाँ जी, ओके, गो Okay, sir. Okay, thank you, sir. Sir, So- many of us we need to leave, sir, ये काम करो, क्यों, क्या हो गया? because many of us has the same PPT session with the FITG company. Same sir. Which company is this? FITG sir. FITG, sir. Okay. FITG. So it's a tech company, sir, for preparation for IT and several other competition exams. चलो एक सेकंड, तो आप एक काम करेंगे, फिर तो ये क्लास अभी बंद कर देंगे और जस्ट लुक एट दिस वन स्लाइड, ओके। आईसीडी क्या है, सीएफएस क्या है, इसका डिफरेंस इधर दिया गया है। वी आर स्पोकन अबाउट इट। हम जब आईसीडी के बारे में, सीएफएस के बारे में बात किया था, इसका डिफरेंस मैंने बता चुका हूँ, तो आप ये स्लाइड लेके आप देख लो उसका, ठीक है। नाउ हाउ मेनी पीपल आर सपोज टू गो? अच्छा, चलो ठीक है, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल रिमेन। अगर मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा नहीं करूंगा, जो निकलना है वो फिट जी के लिए निकलो, जिनको नहीं चाहिए जाना है तो वो रुक जाओ। Okay, sir. Thank you. थैंक यू। तीस लोग बचे हैं। चलो बस ये आईसीडी और सीएफएस के डिफरेंस है। टाइम क्या हुआ अभी? Approx 10:30, sir. 10:30 हम कंटिन्यू करें? Yes, sir. ओके श्योर। हाँ बोलो। So I have already told you what are the things that happen in an ICD, what are the things that happen in a CFS. So आप इसको देख सकते हो, you can read this and you can ask me if there are any doubts. So this is the last slide on shipping, मतलब ocean shipping. We'll move to air. Okay. Sir, what does stuffing and de-stuffing mean here? Means loading and unloading. Correct. जैसे हम we talked about our TVs and क्या है, sofa and cycle ना, Yes, sir. तो तीनों अलग अलग जगह से आएंगे and when they are putting it into a container then it is called a stuffing. अगर दुबई से ये कंटेनर आया है ऐसे अलग अलग लोड आके एंड उसको something has to come to me, something has to come to you, एक ही कंटेनर में माल आया हुआ है कंसोलिडेट होके,
तो यहाँ पर डी स्टफ करते हैं कंटेनर। ओके सर, let me finish. We'll open another slide. Just give me a second. Let me know once you see my screen. तो हम सी के बारे में बात कर रहे थे, सी फ्रेट के बारे में, एयर फ्रेट के बारे में बात करेंगे। अभी ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. So this is $1 billion. Okay. So we're talking about how the air freight industry is at about $116 billion. Okay. In terms of value, in terms of volume, it is some 37 million metric tons. So ESL, it is expected to be some 35 to 37 million metric tons. Okay. So that is the size of the market we are talking about. Last year it has dropped. Actually, last year it went up. It has dropped a little bit. This year it has again picked up, thanks to COVID or drop or pick up for. But this is the size of the air freight industry. Just so that you know, this is global. Yes, okay. India में तो we are talking about very small volumes within India in air freight. We are talking about 0.12, मतलब 1.5 lakh tons of material moving around by air in a year. Okay. It is gradually growing, but it is only growing at a very, when the total value is pretty small. Okay. Most of the material that moves by air is courier letters and things like that. Nothing, no significant major volume of large material moves around in air freight. So advantage क्या हो सकता है? The biggest advantage of air freight is that Time, sir. Time efficient. टाइम। हाँ, उसका क्या है कि पेरिशेबल गुड्स का फटाफट मूव कर देता है। पेरिशेबल गुड्स जो अपना one of the biggest things that go by air in India, you know what? कुछ गेस करके देखो, हाईएस्ट लोड्स ऑफ मटेरियल जो जाता है एयर पे, पता है क्या है? Food item, sir. फूड आइटम होता है, फूड से ज्यादा फूड है, फूड के साथ ये फूल जो है ना, फ्लावर्स, every day there is so many tons of flowers that are moving around in this country, इधर से उधर, उधर से इधर. It's a very interesting thing, but flowers are moved because flowers, उसका क्या है कि शाम को उसको they pluck the flowers, पैक करते हैं, सुबह उसको फ्लाइट पे डाल देते हैं, घुमा देते हैं, अगले दिन शाम तक उसको डिलीवरी भी कर देते हैं.
क्योंकि उसका 24 घंटे से ज्यादा उसका लाइफ ही नहीं है, वैसे कुछ भी नहीं कर सकते, बट ये भी होता है फ्लाइट से। ओके, इसमें डैमेज रिस्क कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो प्लेन्स का इन्वेस्टमेंट अलग है, बट देन जो एयरपोर्ट जो है एग्जिस्टिंग है, उसको टाइमिंग सेट है, इसका रिलायबिलिटी है। ओके, सो बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट, आपका इन्वेंट्री का मतलब आप शिप में डाल दो तो जो मटेरियल 1 हफ्ता लगता है ट्रेन में आने को या रोड पे आने को, आपको 1 दिन के अंदर मटेरियल आपके हाथ में पहुंच जाता है, आप बेच भी सकते हो। सुबह मटेरियल खरीदा चेन्नई से और उस मटेरियल को उस बंदे ने एयर में डाल दिया, तो आपने सुबह पैसा दिया उसको, शाम तक मतलब आपके हाथ में यहाँ पर दिल्ली में मिल गया, और उसको किसी और को आपने बेच दिए, तो सुबह इन्वेस्ट किया, शाम को आपका पैसा वापस हाथ में प्रॉफिट के साथ। सिंपली टू थिंक अबाउट इट। या आपने ट्रक में डाला तो 1 हफ्ते के बाद में अपना पैसा अपने हाथ में आता है, राइट? So these are some of the advantages that you have when you go by air, and tracking is very very easy. Safety is very very high. So air freight, हमारा क्या है कि a lot of air freight goes in passenger airlines. उसको belly cargo बोलते हैं। Okay. जो प्लेन होता है, प्लेन के नीचे जो जगह है, जब लोग बैठते हैं तो उनका सीट्स वगैरह इधर सेंटर के ऊपर हो जाता है। नीचे जो जगह है प्लेन के, मेरा कर्सर दिख रहा है, नीचे जो जगह प्लेन की, वहां पर जो लोगों का जो पैसेंजर का सामान वगैरह रहता है, फिर भी खाली स्पेस रहता है, उस पे एयरक्राफ्ट वाले ने वो क्या करते हैं, वो कार्गो वगैरह डाल देते हैं जो भी मिलता है, तो ताकि उनको पैसा मिल जाए ज्यादा। तो उसको बेली, पेट, बेली कार्गो बोलते हैं उसको। वो मोस्ट ऑफ द इंडियन कार्गो, एयर कार्गो राइड्स मोस्टली आपका बेली कार्गो होता है पैसेंजर प्लेन पे। हाँ, एक आध कार्गो प्लेन इंटरनली डोमेस्टिक प्लेन फ्लाइट एयरक्राफ्ट है, ओके, बट मोस्ट ऑफ द कार्गो इज पैसेंजर में बेली कार्गो हो जाता है। दूसरा टाइप जो है कि प्लेन है एक्सक्लूसिव फॉर कार्गो, कार्गो प्लेन है। और तीसरा है स्पेशल सुपर प्लेन से, वो बड़ा बड़ा मटेरियल ले जाते हैं, कस्टमाइज्ड प्लेन्स होते हैं। तो थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या है ऐसे। हाँ, इसमें ये भी है कि सारे चीज एयर भी नहीं जा सकता। देयर आर बैटरी भेज नहीं सकते हो, पावर बैंक, इलीगल गुड्स, फायर आर्म्स, फ्लेमेबल सब्सटेंस, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, ये सारे जो चीजें हैं, ये एयर में आप कुछ भेज नहीं सकते हो। ये सारे आपको उसके हिसाब से पैकिंग करके सबके रोड पे, रेल पे, कैसे भी उसको, या सी पे जा सकता है आप। तो बेली, तो मैं जैसे बता रहा था, मोस्ट ऑफ द इंडियन कार्गो इज कैरिड आउट इन द स्टमक ऑफ एयरक्राफ्ट। तो अगर मैं प्लेन, ये वाली प्लेन जो है उसको मैं बीच में से काट दूं, ये स्लाइड दिख रहा है आपको सही, थोड़ा बढ़ा दो उसको, कहाँ यार इसको जूम, विजिबल ना। सर वो बगल वाली है ऊपर। अगर इस प्लेन को मैं काटूं बीच में, तो ये क्या होता है कि ऊपर ऐसा जगह है, ये जो लगी हुई है यहाँ पर हमारे लिए सीट बनता है, पैसेंजर बैठता है। ये जो नीचे जो जगह है ना, ये खाली रहता है, उसके अंदर जैसे इधर दिख रहा है आपको, ये सीट ऊपर है, नीचे जो जगह है यहाँ पर ये पूरा सामान अंदर डाल देते हैं। ओके, तो हमारे जो पेटी वेटी होता है, ऑल दो सूटकेसेस, पैसेंजर वाला लगेज वगैरह, वो भी यहाँ पर बैठता है। इन एडिशन टू दैट ऑल द अदर मटेरियल कार्गो जो भी बुकिंग लेते हैं उसको, जैसे हमारा ऑमनीबस है ना यार, व्हाट डू दीज ऑमनीबस गाइस डू? वोल्वो होते हैं, बाकी होते हैं, हम तो बैठे हैं, हमारे लिए बस बनी हुई है, वो तो लॉरी नहीं है, लेकिन लॉरी में जितना लोड जाता है उतना लोड कर देते हैं इसके ऊपर, या तो छत पे उसके ऊपर, और ऑन टॉप ऑफ द बस देयर इज लाइक 3-4 फीट ऑफ मटेरियल डालते हैं, नहीं कि, और नीचे भी अगर जगह है उधर भी डाल देते हैं, करते नहीं है? आप देखे होंगे ना ऑमनीबस में। भाई लोग कोई है या मैं अकेले बात कर रहा हूँ? यस सर।
Yes, sir. तो omni बस में देखे होंगे, है कि नहीं? नहीं देखे? यस सर देखे। देखे है ना? सेम कॉन्सेप्ट सेम है, बस ये प्लेन है, वो बस है, बस इतना ही है, बट बोट आर द ब्लडी सेम कॉन्सेप्ट। हाँ, तो पैसेंजर कहीं बैठा है, पैसेंजर के लिए गाड़ी बनी हुई है, बट देन उसके साथ साथ कार्गो भी ले जाते हैं। तो इसको बीच में ये अपने क्या बोलते हैं, इसको बेली फ्राइट बोलते हैं। एयर कार्गो की टर्मिनोलॉजी में इसको तो उनका स्टमक है उसका, वो बेली में अपने पेट में बिठा के ले जाता है, तो बेली फ्राइट बोला जाता है इसको। मोस्ट ऑफ द इंडियन कार्गो इज गोइंग ऑन बेली फ्राइट ओनली। ओनली स्पाइस जेट का I don't remember. I think they have some 2 or 4 aircraft. I don't remember how many aircraft. जो एक्सक्लूसिव कार्गो एयरक्राफ्ट है, उसको छोड़ा तो आपका ब्लू डार्ट का तो वैसे उनका कुरियर बिजनेस है, उनके पास हम 5-6 एयरक्राफ्ट है जो ओनली कार्गो है, बस वो कार्गो में जाएगी वो, बस और कुछ नहीं करती वो, पैसेंजर नहीं जा सकते उसमें, दैट्स प्योरली कार्गो। एक्सेप्ट फॉर दोस 7, 8, 10 मे बी 10 एयरक्राफ्ट अक्रॉस द कंट्री, कोई एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है कि जिसपे which is exclusively only for cargo. All the air cargo in the country otherwise goes only on the belly freight. ऐसे। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्या है कि पैलेट बोला जाता है, दिस इज ऑल फ्लैट पैलेट्स, मेटल पैलेट्स, जिसके ऊपर कार्टन और पैकिंग जो भी है उसको रख के ऐसे रस्सी से बांधा जाता है, and this is inside a cargo aircraft that is moved inside the cargo aircraft and it is tied down inside. Okay, so it is sent in pallets or it is sent in some of these airtainers. These are containers in airline criteria. जैसे वहां पर शिप में बड़े बड़े कंटेनर देखे, यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट के अंदर जो कंटेनर है, ये भी क्या है कि you put the सामान inside these boxes and these go and sit inside the aircraft. Okay, so there are pallets which are open. There are pallets in the form of containers, जिसके साइड पे बंद हो जाता है, सामान अंदर चला जाता है, सब साइड से बंद हो जाता है और चला जाता है। Okay. Sir, why they are in the form of pentagon? Good question. It's not a pentagon. You will notice that one side is straight. Yes, sir. And one side is at a slope. The reason being, the side that is, if you see inside the aircraft, okay, when they go in the belly of the aircraft, okay, they go into the belly of the aircraft, that is that. तो यहाँ पर देखा, ये जो बस प्लेन क्या होता है, ये तो ट्यूब, at the end of the day एक लंबा ट्यूब है, ठीक है, there is a nose in front, there is a tail in the back, बाकी तो वो एक लंबा ट्यूब है, वो ट्यूब में तो उसको मैक्सिमम स्पेस यूज करने के लिए, नहीं तो क्या है कि यहाँ आगे नहीं जाएगी, अगर इफ यू कीप इट स्ट्रेट ना तो छोटा हो जाएगा, तो उसको ऐसे काट दिया है ताकि वो ज्यादा स्पेस यूज कर सकता है। दैट इज व्हाई ये आप जो देख रहे हो इधर तस्वीर में नीचे जो ब्लू कलर के अंदर, इसको अगर बीच में काट दिया तो ये 2 बन जाते हैं, तो वो आप इधर देख रहे हो, राइट? Yes, sir. So most of these pallets, kind of pallets are used in these container in the belly cargo in large planes, okay, and these are used in freight containers where if you notice यहाँ पर तो वो कंटेनर में नहीं रखा हुआ है, ये पैलेट पे रखी हुई है and it has been tied down. This is a full cargo aircraft. इसमें क्या है कि there are 2 levels, डबल डेकर होता है, बीच में एक लेवल है, नीचे एक लेवल है, दोनों लेवल पे लोड करते हैं। ऊपर वाली लेवल में तो उनको स्पेस ज्यादा है तो they are able to load it properly. नीचे वाली लेवल में they will be able to load it with these kind of containers. देखते हैं। So this is one of the large freight aircraft. Freighter aircraft जहाँ पर पैसेंजर, जिसपे पैसेंजर नहीं जा सकते, वो तो महान है, तो ये पूरा उनका nose is opened, especially only cargo, special doors होते हैं, तो ये ऐसे सीजर लिफ्ट होते हैं, सीजर लिफ्ट से लेके उसको अंदर चढ़ा जाता है। तो this is possibly ये जो है, this kind of a 747 cargo. Okay, Blue Dart has a lot of 767s and 757s. ये कार्गो एयरक्राफ्ट की इनसाइड पार्ट है इधर,
So you can see that they have the option to load it from the front, nose cone को उठा के उसके अंदर डाल देते हैं, or they have the option, there is also options to load this containers from the side, और side cargo door खुल जाता है, उसके अंदर ये माल चला जाता है. If you see this deck, this container here, whoever answered the question, this got the cut on the top. तो ये क्या है कि टॉप डेक में जाएगा, तो ऊपर जो सीलिंग का जो कर्व है उसको इट इज एबल टू टेक केयर. जो दूसरा पहले हम देखे थे, तो बॉटम डेक में जाएगा, वो नीचे वाली कर्व जो है उसको संभालेगा. पूछो सर. See the size of the plane. जो आपका जो फोर्कलिफ्ट ट्रक है, मतलब उसके सामने तो इतना छोटा ही दिखता है. So the largest freighter, air freighter, is a AN 220. आज तक एक ही बना हुआ है, but that's the largest plane that's available in the world. Which can take, it has 6 engines. It can take, जैसे आपके ये दिख रहा है, एक पूरा ट्रेन चला जाता है उसके अंदर, या 4-5 टैंक्स चले जाते हैं अंदर, आर्मी टैंक्स, बैटल टैंक्स चले जाते हैं अंदर उसके अंदर. वो 250 टन तक कैन कैरी द लोड. Okay, these fellows, the 747s can possibly carry something like 175-200 tons. These are 747s. Okay, ये छोटे जो हम देखे इधर, these kind of planes, if there are full cargo planes, इनका payload capacity मतलब 25 to 35 tons depending on the size of the plane ये होता है. But this one here, this largest one can carry up to 250 tons of material. Right? उसको छोड़ के there are special cargo planes. ये क्या करते हैं मोस्टली स्पेशल कार्गो प्लेन्स का काम है कि जब प्लेन बनाने हैं, प्लेन का पार्ट इधर उधर से बन के उसको लेके आना है. जो बीच वाली ट्यूब है उसको ले आना है, पीछे वाली कुछ पार्ट है उसको विंग्स है उसको लेके आना है. तो वो सब करने के लिए उन्होंने स्पेशल प्लेन अपना बना लिए. ठीक है, तो इसके अंदर से कोई पार्ट ऑफ द प्लेन आ रही है बाहर. ये बोइंग का जो प्लेन है, ये स्पेशली मेड प्लेन है जिसके अंदर पूरा वो एक दूसरे प्लेन का ट्यूब बैठ जाता है. ओके, देखो जैसे ये सब आ जाते हैं. And then there are situations where you make the plane, customize it to carry things like this space shuttle. तो जैसे हम सी के लिए हम टर्मिनल देख रहे थे. अच्छा, टाइम क्या हो रहा है? सी के लिए हम टर्मिनल देख रहे थे. एयर में भी क्या है कि एयर में आपका बस सी में काफी कुछ का टर्मिनल था. बल्क का टर्मिनल था, ऑयल का टर्मिनल था, कंटेनर का टर्मिनल था, और क्या पैसेंजर का टर्मिनल था. राइट? Whereas in air there are only 2 types of terminal. One is the passenger terminal, दूसरा है cargo terminal. Okay, so Hong Kong is one of the largest hubs, cargo hubs. This is Memphis, the one that you're seeing here. FedEx का hub है. ये पूरा FedEx का इतने सारे प्लेन रहते हैं. पूरा उनका US में बहुत सारे मटेरियल FedEx के थ्रू जाता है. जो कुछ भी हो वो FedEx में जाता है. तो उनका अपना personal material, whatever it is. So this is a FedEx hub, which is in Memphis. Shanghai is one of the bigger hubs. Okay, UPS करके, like FedEx, you have UPS also. That is in Louisville. That is also a massive hub. These are the largest. Hong Kong is the biggest air cargo hub.
handles like 4.8 million tons a year of cargo. आपको कार्गो टर्मिनल में क्या क्या होता है? कार्गो को उसको अपने यूनिट लोड डिवाइस, ये जो हम कंटेनर के बारे में बात किए उसको यूनिट लोड डिवाइस बोलते हैं। क्योंकि प्लेन में अलग अलग कार्गो ने लोड करते हैं पीस पीस करके, उसको एक यूएलडी में लोड कर देते हैं, उसको एयर टेनर भी बोलते हैं। दैट इस एक लोकेशन होता है जहां पर माल आती है, रोड ट्रक से आती है लोड, उसको उतार के फिर वो यूएलडी के अंदर डाल देते हैं। यूएलडी स्टोरेज करते हैं कहीं, उसको वे ब्रिज होता है यूएलडी का, उसका मटेरियल हैंडलिंग यूनिट्स होते हैं, सिक्योरिटी भी होते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन। ओके, देन ट्रक का डॉक होता है, मल्टी लेवल रैकिंग सिस्टम्स होते हैं सामान उठार के रखने के लिए, और देन टू पुट इट द यूएलडी। यूएलडी क्या है कि यूएलडी बहुत सारे नहीं रहता है हमेशा। प्लेन आता है, प्लेन से एक सेट ऑफ यूएलडी आएगा, वो खाली होगा, उस पर भर के अगले प्लेन में डाल देंगे, ऐसे होते हैं, राइट। एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे एक्सरे मशीन होते हैं, सारे कुछ होते हैं। इसके अलावा आपका कोल्ड स्टोरेज, हजार्ड रूम, स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह। हजार्ड रूम तो ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज हजार्डस मटेरियल नॉर्मली आपको एयर में नहीं जाएगा। okay? और कभी कभी लाइव एनिमल भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। okay? सो ये सारे आपके एयर कार्गो टर्मिनल अलग से होता है, उसके अंदर दीज आर थिंग्स दैट आर अवेलेबल। मटेरियल हैज कम फ्रॉम डोमेस्टिक एरिया एंड अभी इंटरनेशनल एरिया में अगर जा रही है, इफ इट इज एन एक्सपोर्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, डोमेस्टिक होता था कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डोमेस्टिक में ऐसे एक्सपोर्ट में जाना है, फिर तो वापस आपका कस्टम क्लियरेंस सारे सब कुछ वो वापस आ जाते हैं। तो सीएचए यहाँ भी होते हैं, बिल ऑफ एंट्री यहाँ भी होते हैं, और आपके जो बिल ऑफ लेडिंग जो पहले बात कर रहे थे शिपिंग के लिए, सी के लिए, यहाँ पर बिल ऑफ लेडिंग नहीं, यहाँ पर तो बोलते हैं एयरवे बिल। तो वो सारी चीज भी यहाँ पर होता है। So these are vehicles which are used to load the ULDs, the unit load device जो हम बात कर रहे थे। तो ULD को उठा के प्लेन के अंदर चढ़ाने के लिए you need all these equipment. I put in a lot of these pictures here and I'm talking to you a lot of these things because normally ये सब हम देखने को नहीं मिलता ये सारे। तो हम देखते हैं तब तो क्या होगा कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सारे क्या चीज है। ओके, अभी हमें फ्रॉम दिस इज अबाउट हाउ द एयर कार्गो ऑपरेट्स, उस पर क्या क्या मटेरियल है, व्हाट आर द यूनिट्स, व्हाट आर द कंटेनर्स एक्सेट्रा। बट इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वी विल हैव टू स्टार्ट। ओके, we will come to that, but yes, यहाँ तक आपको कुछ पूछना है, समझ नहीं आया ये क्या चीज है वगैरह होता है तो बता दो। Maybe we'll go into the documentation part from next class. Any questions? No, sir. Anybody else? सर फैसिलिटीज इन एयर कार्गो टर्मिनल में सर MHU करके था एक। हाँ, मटेरियल हैंडलिंग यूनिट्स। ओके सर। जैसे फोर्कलिफ्ट होता है, MHE बोलते हैं, MHU बोलते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट नॉर्मली MHE बोलते हैं। इन टिपिकल लॉजिस्टिक्स टर्मिनोलॉजी उसको MHE बोलते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ओके सर। At least you asked a question. I was getting a doubt whether people are there following or not. It's a very fascinating space actually. यहाँ से it doesn't show, but when हाँ जी बोलो। सर व्हाट इज क्वारंटाइन क्लियरेंस? क्वारंटाइन क्लियरेंस ऐसे होता है कि क्वारंटाइन तो अभी सब लोग जानते ही हैं। यस सर। कोविड के बाद में, बट कोविड के पहले भी क्वारंटाइन की चीज होती है।
there are certain food items, okay, especially when there are raw food, okay. So kahin se sometimes you are importing rice, okay, somewhere you are importing wheat, and air mein normally wo sab nahi aate hain, okay, but there are certain things like that which come by air, food items वगैरह, or even wooden parts or some animals for that matter, mainly when you are importing pets and things like that. अभी मेरा एक दोस्त था, वो दुबई से यहाँ पर ट्रांसफर होके आ रहा था, तो वो उसका अपना एक किया ना पेट डॉग. Now the dog they had to bring, it came in the same plane as they came, but came in the under cargo. It was in a cage, and after they unloaded from the plane, the dog with the cage उसको क्या करे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में जाके उसको रख दिए, ठीक है. There the air veterinary doctor जो है उसको they did the examination of the dog and they put it under quarantine for 2 days. 2 दिन के लिए मतलब let us see if there is any infection कुछ होता है क्या है. तो जैसे हम कोविड के लिए क्वारंटाइन करके चेक कर रहे थे, वैसे ये क्वारंटाइन करते हैं. वहां पर क्वारंटाइन के लिए फैसिलिटी है, मटेरियल हो या पेट्स हो या एनिमल्स हो, जो भी है उसके लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी है. तो दैट इज व्हाट इज इन एयर कार्गो टर्मिनल में रखना पड़ता है. मैं एक बार ब्राजील होके वापस आया था. जब ब्राजील होके वापस आ रहा था तो मुंबई में मुझे पकड़ लिया, पूछे कि ये वैक्सीनेशन लिया कि नहीं है, कोई येलो फीवर का वैक्सीनेशन. तो मैंने बोला नहीं लिया. बोला बस 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करनी है, वहां पर क्वारंटाइन रूम है, वहां जाके बैठ जाए 15 दिन के लिए. तो सच फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द एयरपोर्ट. तो थैंकफुली बाद में बात करने के बाद, समझने के बाद, आई वाज कमिंग थ्रू अफ्रीका, दैट इज व्हाई दे वांटेड द येलो फीवर वैक्सीनेशन. एनीवे जो भी है, बट एक्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी रखता है एयरपोर्ट में. Okay, sir. Any other question? It's very interesting. अगर कोई आप लोग कभी एयर मतलब जब भी आपका एयर में जाने का मौका मिलता है, करते हो, तो हमारे यहाँ पर क्या है कि इतना सारे एयरपोर्ट में कार्गो चलता है, बट देन सारे एयरपोर्ट में अलग से एयर कार्गो फैसिलिटी नहीं रहता है. इट हैपेंस इन द पैसेंजर एरिया इटसेल्फ, एक साइड से कर देते हैं. तो आप बाहर ये सब देखते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है. व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं. यू कैन आस्क ऑल दोस क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ एंड मे बी कम बैक एंड आस्क द क्वेश्चंस इन द क्लास एंड अंडरस्टैंड इट बेटर. वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड. ठीक है, चलो let us stop here for today and we will start with the documentation tomorrow. All right? Yes, sir. Right, guys. Thank you very much. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.